ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਕੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨਸਲਾਂ ਤੇ। ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਕੀ ਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੀਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੁਨਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲ, ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਇਹ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੇਮ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੋਸਟਰ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਮਕਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੀਕਰ ਭਾई ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ और ਵਧੀ है। वो तो एक अलग सी बात है। और लेकिन साकी भाई ने तुसी ये दसो जी, बोले मुझसे भाई। और इनकी इज्जत बिल्कुल ही आगे मैं लफ्ज नहीं यूज कर सकता। ਸਾਕੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗਣਾ, ਤੇ ਸਾਕੀ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ? ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਨਾ। वह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਇਹਦਾ काम है सिर्फ और सिर्फ इसका काम है डसना, फिर भी मैं उसके साथ प्यार कर रहा हूँ कि भाई तू मेरे को दोबारा से डस। किस वजह से? और एक बंदे का पता है कि ये बंदा इतना बड़ा यार मार है कि उसने एक वॉइस मैसेज को, साकी भाई वॉइस मैसेज को ओपन कर दिया है, और दूसरा बंदा पिया कहता है कि मैं इन्हां दोवां दी रिकॉर्डिंग की। उन्होंने ये भी नहीं पता कि भाई ये मैसेज सी या की सी, उन्हें मेरे हले सुने ही है बस। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ? ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਧਮਕੀਆਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਲਕ, वरना मैं तेरी फैमिली ते जाने। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਕੀ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਕੀ ਨੇ ਏਡੀ ਦੀ ਡੀਪੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਏ, ਇਹ ਏਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪੱਕਾ, ਯਾਦ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੀਪੀ ਲਾਓ, ਡੀਪੀ ਲਾਓ, ਡੀਪੀ ਲਾਓ, ਡੀਪੀ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ, ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਮੁਲਕ ਫਿਰੇ ਹੋਣ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਬਣੇ ਹੱਥ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਫਲਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਾਣਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦਾ। और नाल वाले मुंडे कहन बाबर भाई इन्होंने सलातो वसलाम के लिए, वो कहना और नहीं वो ठीक है, वो आप 2 मिनट रुक जाए, आप वो थोड़ा सा साइड इशू पे जा रहे हैं, मेरा मसला और है। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਏ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜ਼ਾਤੀ? ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਹਲੇ ਸਲਾਤੋ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਲਾਤੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਲਾਤੋ ਇਸਲਾਮ ਬਰਜ਼ਈਆ ਨੇ ਪੜੇ, A to Z ਪੜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗੱਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਵਨ जाहिद, मैंने भी किया, मैं कहा जाहिद इवन जो मौलवी है तूने उसको भी जो है तूने वो फर्क कर दिया, मतलब एकदम तू एक पासों ना कदी ये टॉपिक छड़िया साडे विच, ना कदी गुफ्तगू हुई, तू एकदम लिया के ते जनाब आप गैरतमंद बन गया, बाकी सारे तू गैरत बगैरत ਇਹਦਾ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਡੈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਐਮ ਦੀ ਡੀਕੋਡਡ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਦੀ ਡੈਡ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਮ ਮਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਕ, ਬਾਬਰ ਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਤੇ डैड अब ਹੈ डैड अब कहाँ गई है, डम एंड डेस्परेट। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਰਬਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। सीकर भाई नेल पॉलिश तो उसका सब्जेक्ट बनता है ना। नहीं चले आप नहीं नासिर भाई, आप मैं क्या, तो लेकिन बात सिंपल पता है क्या है कि एक बंदा के मैं निजाम पे बात करने वाला हूं, मैं एडी इसलिए नहीं बनी थी, किथे गई एडी जी, फाउंडर ते को फाउंडर की बढ़ गए, चोली ड्राइवर साहिल खान दे ऐसी एडी और क्राउड इकट्ठी करन गए हो है, क्राउड इकट्ठी करन गए हो। ये जो आज रिलीज हुई है काजमी की, इस पे लगाए ना आप ब्रॉड, वो अब बात करें ना भाई कोई लीक और रिलीज नहीं हुई कि टिकटॉक की लाइव की रिकॉर्डिंग है, वही मतलब वही ना चलेगा, लफ्ज गलत निकल गया, लेकिन आप लगाए ना उसके खिलाफ, नहीं लगाएगा नहीं ना गुस्ताखी की है उसने। जरूरतमंद है ना। देखो जी उसके को फाउंडर ने दरूद पढ़ा है मिर्जे के ऊपर, बातें है ना। हम देखो पर मर जाएगा। ये पूछना चाहिए कि ये गलती से निकला या मास्टर भाई हाँ, हम तो कहेंगे गलती से निकल गया,
लेकिन हम थे सहूलतकार, इसकी हो जाएगी गलती, कैसा है फिर? जी जी, वही इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम है सहूलतकार, ये गलती। ये स्लिप ऑफ टंग है ना। बिल्कुल, तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पर्चा। पर्चा। बस बात वही आई। बनाने को मैं बना सकता हूँ बहुत कुछ, अभी मेरे पास इसके जोड़ने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं गैरत नहीं हूं यार। मैंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, मैंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना भाई। मेरी शिफात किसने करी? मैं उनके नाम के ऊपर अपने बदले निकालूं लोगों से? चले सीट बेल्ट बांध ले, बाजी आई है अब। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं बाजी आई वालेकुम है मतलब क्या मतलब? मैं इतनी खतरनाक हूँ? बाजी आपने जो डीपी लगाई हुई जी जी है तो आप सहूलतकार, आप जी। डीपी लगाई है, आपके जो को फाउंडर हैं इस एमजे डिकोडेड के, हाँ जिन्होंने जी ये डीपी डिजाइन की और जिन्होंने पूरा एमजे डिकोडेड को पिछले 1 साल में चलाया है, हम देख रखा उन्होंने तो मिर्जे पे दरूद पढ़ दिया बाजी। जी, मुझे पता चला, मैं तो वो देख कर आई हूँ, मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ। क्या मामला है? मतलब ये तो मतलब कि 2 सालों से चल रहा था, तो जब वो हैंड ओवर करके गए थे एक भाई फाउंडर को आहा, तब हिदायत करके गए थे कि अब से नहीं पढ़ना, क्योंकि तो उसके तो बाद भी बहुत देर तक पढ़ा गया, फिर पढ़ा गया। हाँ। ये चेंज ऑफ माइंड आया कब सीकर भाई? ये जब दोनों इकट्ठे बैठे। ये चेंज ऑफ माइंड आया बाजी उस रात जिस दिन वो चढ़ के ब्रॉड पे राजा ताउल मनान, और उसने कहा कि यार मैं तो सोया रह गया हूं, मैं तो अभी उठ के ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, इन्होंने 100 पे ब्रॉड है, 125 पे ब्रॉड है, ये आपस में जनाब नीचे चल रहा है सिस्टम में, मैं अपनी इंपॉर्टेंस कैसे दिखाऊं? उसने आके ये बाकियों वो को, दिन की बात है सीकर भाई, जिस दिन आपने कहा था कि भाइयों को ना चढ़ाया करें। हाँ ये उस दिन की बात जी है, क्योंकि इसने सबको बेगैरत बनाया था नीचे बैठे हुए, और ये खुद गैरत वाला बन गया। सीकर भाई, मैं तो आपसे एक और अलग भी सवाल पूछने आई थी। जी जी देखिए, एक ज़ाती दुश्मनी में साइड पे रख के जी जी अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि एक बहन है, वो पहले कादियानी थी, उसने इस्लाम कबूल किया। अब देखिए, मुझे यहाँ से ये लगता है कि अब उनके भाई उनसे बात नहीं करते, वो खुद कहती हैं आके प्लेटफॉर्म्स पे कि मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया है। उनकी अच्छा। अब देखा जाए तो भाई कौन थे? ये लोग थे। मैं एंड तक ना हुस्ने जन दे रही थी इन भाइयों को, क्योंकि मेरी एक कैसे जाती कैसे किसके भाई कौन थे, मैं समझा रही? एक हमारी एक सरवा बहन है, अच्छा हाँ वो पहले कादियानी थी, सबको पता है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हाँ, ठीक है। अब उन्होंने देखिए कितनी दफ़ा आके खुद ये बात बताई है कि मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करती। बिल्कुल। ये साकी भाई समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, ये कितनी तकलीफ दे बात होती है, इजी नहीं है। जाहिर। अब वो इनको भाई समझ के इनसे बात करती नहीं। मैं फिर भी इन भाइयों को हुस्ने जन दे थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि क्योंकि मेरी जाती लड़ाई है ना उस बहन के साथ, तो मैं कहती नहीं इसी का कसूर होगा। लेकिन अगर फोकस करें और अगर सोचा जाए, मैं अपनी जाती लड़ाई अगर साइड पे रख दूं, या बख्तियार भाई ना करें, मैं अपनी जाती लड़ाई साइड पे रख दूं ना, और मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस करूं कि उस बहन ने इनको भाई माना, बिल्कुल। समझा, ऐसा क्या किया उन्होंने इस बहन के साथ कि उस बहन को आकर इनकी बातें बतानी पड़ी। और सीकर भाई, अगर बहन के मुंह से कुछ निकल भी गया, क्या ये भाई ज़र्फ नहीं रख सकते थे कि कोई बात नहीं, बहन है, हम आपस में कर लेंगे, हम प्राइवेट में कर लेंगे। इन्होंने स्पेशल एक लाइव लगाई, वहां पर बहन को इन्होंने बैठकर, आपने वो लाइव सुनी सीकर भाई? मुझे सुनने को मिला है हल्का सा, मैंने देखी नहीं है, मुझे पता चला कि इन्होंने कहा क्या। बहुत बुरे बुरे इल्जाम लगाए इन्होंने बहन पर। अच्छा हाँ जी, अच्छा, वो नहीं मुझे पता। इन्होंने अच्छी बातें नहीं की बहन पर। अच्छा जिसको कभी आपने बहन बोला हो, लड़ गए ने? नहीं वो कल तो सुलह बस हो गई उधर सुलह, अच्छा अल्लाह खैर रखे, सुलह ही रहे। लेकिन मैं अब इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि ये ऐसी क्या हरकतें करते हैं, और खास करके उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ जो कादियानियत छोड़कर आए। अब वो भी बार बार यही कह रही थी कि इन्होंने मेरी नीयत पे शक किया। अब देखिए, मुझे नहीं पता कौन सी नीयत कह रही थी।
तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। ये तो वाकई वो बात सोचने ली। देखिए उन बहन का जो किस्सा है, मैं यही कहूंगा कि बस अल्लाह ताला रहम करे और हमें ये इस तरह की वाकया देखकर ये ना हम जब दिल में लाएं कि हम किसी के साथ नेकी करने का सोचे ही ना, लेकिन बड़ी ज्यादती की है उन बहन ने भी। वैसे देखिए मैंने तो भला ही किया था वैसे, कसम से चंगेज खान वो को। बहन जज्बाती बहन है सीकर भाई, मैंने ये कहा है, मैं अपनी जाती दुश्मनी साइड पे रख रही हूँ। हाँ कुछ भी मुझे हो है उनसे तो बहुत बहन। इख्तलाफ है। अच्छा इंडिया कल्ट में बस्टर टुडे वो बहन है ना। जी भाई, कल्ट बस्टर बाजी, वो एक पैसे खाने वाले एक ड्रामा भी किया गया था, कुछ याद आया आपको? नहीं। मशवरा भी किया था भेजें के ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब ये लोग किधर हैं? उधर ही नहीं है? हाँ पैसे यार ये क्या है, मैं कितने रहे आएंगे आज सर। अबे आप तो सो ही रहे होते ना। साकी भाई ये मैंने सोचा नहीं। मैं हिंट देता हूँ आपको इनबॉक्स में। मेनू भी दे दे थोड़ा हिंट। आपको ही कह रहे हैं भाई, मुझे तो पता है, मुझे क्या हिंट देना है उन्होंने। हाँ साकी दे यार हिंट जरा, तगड़ा दे हिंट, मैनू पता नहीं बाकी पूरी गाली दस दे। अल्लाह अकबर। ईमानदारी का तकाजा तो ये है ना सीकर भाई, कि जो बहनें होती हैं वो जज्बाती होती हैं, सबको पता है। वो जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी रो पड़ती हैं। अब मैं कल को उठ के यहाँ पे बोल दूँ कि भाई मौनसर भाई ने मुझे ये कह दिया, मौनसर भाई मुझे पता है शहजादा बंदा है, उसने कहना कोई बात नहीं मेरी बहन है, आज नाराज है कल मान जाएगी, वो थोड़ी ना मेरे पे बातें करेगा और बैठ के लाइफ लगाएगा कि जाओ सीकर भाई लाइफ लगाओ, कल्ट बस्टरबाजी और मेरे बीच में इख्तलाफ हो गए, हमने सबके सामने सॉल्व करने हैं। उसमें कादियानी नहीं देख रहे थे सीकर भाई? हाँ बात तो सही वो है। कादियानी नहीं हंसते होंगे उस बहन पर कि तू गई है हमें छोड़कर मुसलमानों में, देख तेरी क्या इज्जत है। ज्यादती थी वो, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये आप Good लोगों को point, दूसरा समझ नहीं साकी, आएगी। अब मैं समझ गया, मैं पिक हाँ, कर गया। क्योंकि आप लोग आते हैं माशाल्लाह, आप लोग हैं बोन मुस्लिम्स, हम लोग एक ऐसी जगह से आते हैं सीकर भाई जहाँ पे हमें हर वक्त ताने पढ़ने सुनने पड़ते हैं मुसलमान ऐसे ही। ये कादियानियों से कि तुम जी कौन से फिरके में गए हो, कौन से मुसलमानों में गए हो, तुम्हारी बहनें जो टिकटॉक पे नाचती हैं। वो कह रहा था ना नादिर, हाँ भौंकरा तो है। तो आप मुझे बताएं सहूलतकारी किसने की है? क्या बाबर भाई को ये लाइव लगानी चाहिए थी? क्या ये आपस में नंबर भी हैं? यही चीज बैठ के तुम व्हाट्सएप पे कर लेते। और बाजी तुमने ये मसला कादियानियों हो को रहा है, ये मसला हो रहा है, आप बात नहीं समझी। मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। हुआ ये है कि उस बंदे को कुछ नहीं मिल रहा था टिकटॉक के ऊपर, उसको लोग चाहिए। फैन फॉलो। फील किया उन बहन को हम पे बहुत गुस्सा है, ठीक है जी, और उसने उन बहन को सामने बिठाकर उसने हर ट्राई की कि उन बहन से कुछ ना कुछ उगलवाया जाए, कुछ बुलवाया जाए बात। उसने बहाने बहाने से उन बहन को तपाया। वो बहन भी हमारी जज्बाती होकर बोलती। अब इस ग्रुप से उनका मसला था, अब बाबर को दोनों चाहिए। उसने ये ड्रामा किया कि मैं आपकी जी वो सुलह करवा देता हूं, तो मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। उसके लिए मैटर नहीं करता भाजी कि कादियानी देख रहे हैं कादियानी नहीं देख रहे, उसके लिए मैटर नहीं करता। उसको लाइव चलानी है अपनी, बस। उसको ये भी मैटर नहीं करता। आज मैं लोगों को एक और चीज बता दूं, काजमी को ये मैटर नहीं करता कि काजमी की लाइव जो है वो चले या कुछ ऊपर जाए या कुछ और। काजमी को मैटर करता है कि मेरा मुंह चले, बस मुंह चले, मुनाजरा चाहिए। मेरा मुंह चले, खारिश मेरे मुंह की ठंडी हो। और मैं अब जो है ना वो आजकल तो खैर वो पागल हो गया हुआ है, कुछ अरसे से उसको थोड़ा सा अंग्रेजी एक्सेंट बना के बोलने का कोई टैग हुआ है। अच्छा भला होता था किसी दौर में,
तो वो उसको ये है। बाकी बाबर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ पे 15 घंटे कोई और बोले, उसको सिर्फ ये मेरी लाइफ चले, हाँ ही डजंट केयर। उसने बाबर स्टार्टिंग में देख ले आ जी गया, जी इन्होंने कहा कि ए पैसे खांदे ने जी, ए मनाजरे करा करा पैसे खांदे ने, ए मनाजरे करा करा पैसे खांदे ने। वो जो गालीबाज ब्रिगेड बैठी है, हालांकि उस चब्बल को इतना नहीं पता हमारी ब्रॉड पे तो मनाजरा होता ही नहीं भाई, नहीं होता। हम तो मनाजरे करते ही नहीं है ना, तो हम T20 खेलते हैं, हम वो मुनाजरा करते हैं जहां पे मुनाजर आके अपना दावा दे के खुद ही हार के चला जाता है। बिल्कुल हमारा तो चक्कर ही नहीं है। अच्छा, बाबर साहब ने इस सब के बाद आते ही जनाब पहले मनाजरा करवाया। बहुत उस दिन बाबर खुश था, हंस खेल रहा था। जिस दिन जवाद आया और सुहेब राजा आया, ठीक है, गिफ्टी कोई टिका के वहां पे, बड़ा ही खुश हुआ। बादशाह खिली भी थी बाबर की। बाबर ने कहा आज मैं कामयाब हो गया, लो जी। उसके बाद लाइफ पे 15 बंदे, 14 बंदे, 11 बंदे। फिर हमारी एक बहन है हाय 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 हाय। जी, आपको पता है क्या राज दफन है सीकर भाई, क्या क्या राज दफन है? याद है कुछ? बिल्कुल याद आया? बिल्कुल आया। बेचारा बाबर सीधा हो जा, तेरा नाम मैंने फपे कुटनी डाल दिए, चल क्या याद करेगा चूड़ा फपे कुटनी, नाम बढ़ते जा रहे, ठीक है बाबर सीधा हो जा। नहीं समा भाई, जैसे आपने कहा करना चूड़िया जिस मुझे ना एक दफा, मैं आपको सच्ची बताऊं, कसम से मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जिस तरह ये देखे बनता नहीं है हमारा, और मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता था, और बिल्कुल करता था, डंके की चोट पे करता था, और नाराज होता था कोई हो जाता था। मैं बाबर की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि जैसे बाबर ने कहा मैं सीकर नाल लड़दा सी कि तू सलातो व सलाम की इजाजत नहीं दे सकता। खुदा की कसम हमारे में डिस्कस भी कभी नहीं हुई ये बात, अल्लाह की कसम करता हूं। और मैं कहता हूं लानत अल्लाह अल गाज़िबीन, ये आमीन कर दे बस, अल्लाह देखेगा बाकी। कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। इसने कहा मैंने एडी इसलिए छोड़ी, लानत अल्लाह अल गाज़िबीन। नहीं ये तो झूठ है। सीकर भाई, आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। जी जी, आपको याद है जब मैं नैनी आई थी, मैं किसकी लाइफ पे आई थी? बाबर की। वहां पे आपको पता है कौन बैठे थे? वो कोली थी, और कोली जी, बाजी। दो हमारी हाँ नाम कादियानी कोली वो थी, ये दूसरी का नाम मुझे नहीं उनका पता क्या था। सुबह सवेरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक आपको याद है उसके बाद बाबर भाई ने काफी दफा मेरे साथ लाइव शेयर की, मैं आई भी, फिर क्योंकि मेरा ऑन एंड ऑफ होता था और मैं फिर उस डिटेल में नहीं चीज़ों में जाती थी, मेरी अपनी मर्जी थी। उस वक्त मुझे एक चीज़ बुरी लगी, मैंने ऊपर आके बोल दी। अच्छा, थोड़ा अर्सा गुजरा, इन्होंने मुझे कॉल डाली, मैंने अपनी आईडी प्राइवेट कर दी थी। ये मुझे कॉल नहीं डाल सकते थे और मैं कॉल डालती नहीं थी। नीचे कमेंट सेक्शन में ना, अब ना मेरी तब आदत थी कि मैं रिकॉर्डिंग करूं, पता ही नहीं था कि कभी इस लेवल तक, इस लिमिट तक कभी हमने पहुंचना है। टिकटॉक वॉज जस्ट फन फॉर मी। वो शकील सिद्दीकी नहीं है, मैंने उसको बड़ी गिफ्टिंग की हुई है वो मैं सुनती थी आके, वो जो कमेडियन नहीं है पाकिस्तान का, वो कराची वाला, वो बुढ़ा हो गया अच्छा मैं उसको बहुत सुनती थी, वो आज भी मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। मैं तो जाती थी उसकी लाइव देखती थी, हंसती थी, उसको गिफ्टिंग करती थी, चली जाती थी। ये स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ना 2-3 दफा ऐसे ब्रॉड्स आई और आई फाउंड सब इंटरेस्ट इन इट कि अच्छा चलो मैं भी जाके बोलती हूँ। उसमें बीच में इन्होंने लगाई निदा नसर की ऑडियो और मैंने इनसे कहा बाबर भाई से कि मी बीइंग अ फेमिनिस्ट, बिलीविंग आई एम अ फेमिनिस्ट, और मुझे ऐसा लगता था कि ये एक नाइंसाफ़ी है कि एक इंसान की तकलीफ को आप बार बार बयान कर रहे हो, डोंट प्ले ऑन दिस कार्ड। ये मेरी अपनी सोच थी। बाद में भी बाकी भाइयों ने भी चलाई हैं और मैंने हमेशा मना किया है, अप अंटिल द पॉइंट जब मुझे आसिफ भाई ने समझाया कि बहन दिस नीड्स टू बी हर्ड, बिकॉज ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, इसको हमें स्प्रेड करना चाहिए, अवेयरनेस के लिए करते हैं। तब मुझे अक्ल नहीं थी। बाबर भाई ने कर दिया गुस्से में मुझे ब्लॉक, क्योंकि मैं नीचे लिख रही थी कि दिस इज़ नॉट फेयर।
बाबर भाई ने मुझे कहा कि बाजी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फेयर, और इन्होंने उठा के मुझे कर दिया ब्लॉक। आहा, क्या बात। मुझे फर्क नहीं पड़ा, आई डिडंट गिव अ डैम, कौन हो आप। अच्छा, फिर मैं जाने लगी ये फैज भाई वाली की लाइफ लगती थी और पता नहीं एक दो लाइफ लगती थी, मैं उधर जाके बैठने लगी। नो प्रॉब्लम। मैंने अभी एडी की थिंग डीपी भी नहीं लगाई थी, मैंने एक दो शेर भी मारे थे किसी को। अच्छा, आसिफ भाई ने एक दिन मुझे टिकटॉक पे मैसेज किया, शेयर की लाइफ बाबर भाई की, तो मैंने कहा कि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ उससे बाबर से कि आपको अनब्लॉक करे। मैंने कहा नो नीड, कोई मसला नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है कि मुझे कोई अनब्लॉक क्या करे। वो शेर बाबर ने देखे थे आपको मारते हुए? रुक जाओ साकिब भाई, गिव मी अ मिनट, हाउ डे यू। अच्छा, उसमें क्या Oh, हुआ, how dare you? जी। उसमें क्या हुआ, बाबर भाई ने ली रिटायरमेंट ली, और बाबर भाई की कान तक ये बात पहुंची कि बाजी ने 2 शेर मारे किसी की लाइफ पे। ओए 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 ओए। अच्छा, अब फिर मेरे तक ये बात पहुंची कि बाबर भाई ने इस खुन्नस में नहीं किया था मुझे ब्लॉक कि मैंने नीचे लिख दिया था कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट इवन अ रीजन टू ब्लॉक एनीवन, राइट। बाकी वैसे मैं reason- आपसे एक आज बात पूछूं, जी सच्ची जी क्या जी बता नहीं। जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझ के शेर मारा था। नहीं, मुझे वल्ला मालूम, मैं तो इनकी आपको तबीयत पता भी था नहीं ये जानती। शेर जिसको मार रही उसको नहीं बजना, किसी और को बजना। साइकी नहीं नहीं, बाजी बाजी ट्रस्ट बाकी ट्रस्ट साइकिल लीगल समझ से। गई। मुझे क्यों मैं- लग रहा है किसी ने रिक्वेस्ट की है। अच्छा मोहन भाई आप तो रहने थे, चले मौसर भाई, मोहन भाई आपने ना बीच में पोंगी मारनी होती है। उसामा भाई की बहन हूँ मैं, मैंने आपको साफ बताया, मैं आती थी गिफ्टिंग, और मैंने बाबर भाई को भी बताया हुआ, बाद में बताती हूँ। अच्छा, बाबर भाई ने रिटायरमेंट ले ली, बाबर भाई ने मुझे अनब्लॉक किया, और जिस दिन रिटायरमेंट की उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर की। माशा। ठीक हो गया, मैं बाबर भाई की लाइफ पे गई और मैं ऊपर भी गई और मैंने सलाम किया, और मैंने बाबर भाई से मैंने कहा कि देखें हमारा ज़ाती जो इख्तिलाफ है वो अपनी जगह है। तो बाबर भाई की जैसे हालत है, नहीं बाजी छोड़ दे, कोई इख्तिलाफ नहीं है बाजी, नहीं बाजी छोड़ दे। तो उन्होंने आप मुझे इलम वाली है, मैं तो इलम वाला नहीं हूँ, आप ज्यादा इलम वाली है। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं ये एड्रेस कर सकूं कि भाई आपने मुझे ब्लॉक किया था, आप अनब्लॉक कर दिया है, आप अपना काम जारी रखो। आई डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, राइट। आई हैड नो आइडिया आप लोग भाइयों में क्या चल रहा है, मुझे किसने बताया था। तो मुझे बुरा लगा कि ये एक इंसान है जो एक काम कर रहा था, ये छोड़ कर जा रहा है इस चीज़ को। कि नहीं बाजी मैं सोशल इश्यूज पे काम करूंगा, बड़े और इश्यूज हैं, खवातीन के इतने इश्यूज हैं, खवातीन के हुकूक के हवाले से आपने मेरा साथ देना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं बाबर भाई, मैं तब भी आपके साथ ही, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर मैं होती ईगो रखने वाली बहन तो मैं कहती कि तुमने मुझे ब्लॉक किया है, ले अब मैं तुम्हें ब्लॉक करती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। एंड ऑल्सो आपकी जो एक फॉरगिविंग नेचर होती है वो आपकी नेचुरल नेचर होती है, आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे बाद में पता चला कि बाबर भाई ने मुझे इसीलिए ब्लॉक नहीं किया था क्योंकि मैं नीचे ये लिख रही थी कि डोंट प्ले दिस ऑडियो, दिस इज नॉट फेयर। अब आप खुद सोचे सीकर भाई, वाज दैट अ रीजन टू ब्लॉक एनीवन? It wasn't. that was a good reason to block you by Babar. That was a good reason? Good reason, because being Nah. Babar, मैं थोड़ा सा वे था बाजी, आपने कहा क्या रीजन थी? आप पूछ रही हैं बाबर का कॉन्ट्रैक्ट हमारे रूल्स के आपसे, ऊपर। हाँ नहीं, इन जनरल मैं कह रही हूँ, अगर आप लाइव general लगा के रहे ऊपर हैं तो मैं कहता और हूँ मैं कि नीचे this आके is कह देती हूँ इट्स nonsense. नॉट फेयर, वुड यू ब्लॉक मी? एब्सोल्यूट नॉनसेंस है ये, तो मैं फेयर क्या, ये फेयर और इसमें दूसरा है नहीं, ये नॉनसेंस है। और अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिएगा जी, सिर बाजी, जी। एक दोबारा बता दे मुझे, मैं सुन नहीं पाया। बाबर उन्होंने भाई आपको ने ब्लॉक ना किया, गिफ्टिंग के पीछे नसीर- ब्लॉक किया? नहीं नहीं, निदा नसर की वो लगाते थे ऑडियो, बार बार प्ले करते थे। बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मुझे तकलीफ होती थी उसकी वो तकलीफ सुनकर, और मुझे लगता था, और जिस सेइंग क्योंकि आपने फैज भाई का नाम लिया है, लेकिन बाय देन आई वाज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय बाबर भाई।
So okay, it doesn't make sense then. हाँ, आप सिकर भाई बोले कि ये वो रीजन नहीं है, नहीं है, देखिएगा आप, नहीं। ये वो नहीं है। देखिए हम मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ। पुराने पापी हो चुके हैं इस मामले में। बाबर तुझे खोल दिया हमने, यकीन मान, पढ़ नहीं, मैं पी लिया ना, तुझे। मुझे शुरू से ना उसामा भाई डेट्स नहीं याद रहती, मुझे इवेंट्स याद रहते हैं। मुझे आप कहेंगे तो पूरी पूरी कॉन्वर्सेशंस, पूरी मैं अभी भी जो मेरी फेवरेट मूवीज है, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरी अभी भी जो फेवरेट मूवीज है ना, आप अभी टर्मिनेटर 2 लगाएं, अभी आप उसको म्यूट कर दें और सबटाइटल्स अपने पास रखें, मैं आपको पूरी मूवी बोल के बता दूंगा उसमें डायलॉग्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी इस मामले में। माशाल्लाह। हाँ, साल पूछ ले, मुझे याद नहीं होगा किस साल में रिलीज हुई थी वो। तो इसी तरह मुझे हवाले याद नहीं होते कि भाई ये कौन सी किताब, जैसे आप देख ले इधर जो वो खतबे नबूवत का काम करते हो, कहते हैं पुरानी खजाइन जिल्द नंबर फलानी सफर नंबर है, ओ तेरी उठा हवाला, मुझे याद ही नहीं होते भाई। ਵੈਸੇ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ना था कि ना करी। ना 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 ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਤੇ करनी ਲਾਨਤ ਆ। है। आहा, अच्छा, मेरी भी दसी ना। नहीं, अच्छा सुनो, इसी तरह ना मुझे जो हवाला मैं पढ़ लेता हूं ना, वो मुझे याद है, मतलब मुझे ये पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हवाला याद हो ना हो, तहरीर नहीं मुझे भूलती, ये मैं मार नहीं खाता। इसी तरीके से मुझे कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो मुझे यहां तक भी माशाल्लाह याद होती है कि मैं कहां खड़ा था, कहां मुझे कॉल आई थी। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मेरी बाबर से पहली बार जब वीडियो कॉल हुई थी तो मैं कहां बैठा हुआ था, आई वॉज एट लेक कोमो, इटली। मुझे अभी तक याद है, वीडियो कॉल पहली बार हमने बात की थी। ओए 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 ओए, लुगानो के साथ ना, हैं? लुगानो के साथ स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास कोमो। बिल्कुल, बिलाजियो में बैठे सी, बिलाजियो ते ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਿਲਾਜੀਓ ਸੀ ਮਨਾਜੀਓ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ नहीं, लेकिन बैठे मैं लेक कोमो से। लेकिन सीकर भाई मेरा आपसे सवाल है फिर, जी जी आपने मुझे एक रीजन दिया जो कि मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया, जी। एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ टाइम। लेकिन जब पावर भाई ने सोशल इश्यूज पे लाइफ लगानी स्टार्ट की, मैं जाती रही हूँ, उनके पास बैठती रही हूँ। उसके बाद उन्होंने, मतलब जब उन्होंने विमेन राइट्स पे बात की जब भी, तो जाके बैठे उनके साथ, हंसी मजाक भी किया है। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइफ लगाई, कभी वकीलों पे, इवन जब वकीलों पे इन्होंने लाइफ लगाई थी, इनकी लाइफ पे कोई भी नहीं था, यकीन करें 4 लोग बैठे थे। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये बंदा इतना अच्छा काम करे, देखो कोई इसकी लाइफ पे नहीं बैठा। मैंने कॉल डाली, मैंने कहा मैं जाऊंगी ऊपर तो मेरे पीछे बाकी सब भी आएंगे, नेचुरली दिखता है। मैं ऊपर बैठी जाके मैंने इनसे गपशप की, नहीं बाजी ऐसे है वैसे है फलाना है ढिमकाना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं आया मेरे पीछे पीछे, मैं भी बोर होगी, मैं उतर गई। उसके बाद भी सीकर भाई, जब इन्होंने लाइफ लगाई है बाबर भाई ने एडी के अगेंस्ट, उससे मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले मैं इनकी लाइफ पर बैठी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल थी यहाँ पे। और मैं इनको तब भी यही समझा रही थी, भाई आप काम बहुत अच्छा करते हैं, गालियां ना निकाला करें। नहीं बाजी गाली तो फिर जरूरी है ना। मैंने कहा नहीं भाई, मुसलमान गाली नहीं दे सकता। ओए गाली वहां से जरूरी मैं है, उतरी हूँ, भाई ने नहीं, मुझे साफ मेरे मुंह लाइव पे में कहा। क्या स्पाइस होता है ना, कि लाइव में लोग आके देखने हाँ। आते हैं अब्यूजिव। एक बहन बैठी थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये गाली देते तो इनका रीजन होता है गाली देते। मैं चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है। हैं, ये किसने कहा रीजन होता है गाली देने का? वो जो उनके साथ जो बैठी थी ना ऊपर, उनकी साइकोलॉजिस्ट बहन जो है। हाँ, उन्होंने कहा कि उसके पीछे भी एक इनकी रीजनिंग होती है, कुछ लोग गाली के बगैर समझते भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो खैर है, मैं इन दोनों के साथ क्या बहस करूं, तुम नहीं समझ रहे। मैं टोकना ज्यादा नहीं चाहती, ये सीकर भाई कहाँ से साइकोलॉजी की डिग्री ली है? तेरा मैं भी 1 दिन के अंदर ये जाके उसी हाजिर यूनिवर्सिटी से ली है जहाँ पे बताया गया था कि गाली एक ब्रॉड वर्ड। गाली ब्रॉड टर्म है। ओह माय गॉड। कोई नहीं, वो हम बाबर थोड़ी है, वो बहन है, कोई बात नहीं, चलो खैर कोई बात। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि ठीक है आपने भाइयों पे लाइफ लगाई, भाइयों से आपकी शिकवे शिकायतें भी हो सकती हैं, मेरे साथ आपको क्या शिकायत है ना, मेरे पास आपका नंबर है, आपके पास मेरा नंबर भी नहीं है,
ना हमारी आउट ऑफ टिकटॉक कभी बात हुई, ना इनबॉक्स पे कभी बात हुई, सलाम दुआ भी कभी नहीं हुई। और मेरा नाम ले लेके आप अपनी लाइफ चला रहे हो। मतलब मुझे समझ में आ रहा था सीकर भाई कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे हाँ। भाइयों को तपाया जा रहा है, ऐसे ही कि उनको पता है कि ये इनकी बहन है, इसको छेड़ेंगे तो भाई आएंगे। और मुझे ये भी पता है कि जब इन्होंने ये सारी बातें स्टार्ट की, और ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ आज वेरी कॉन्फिडेंटली, कि इनको लगा कि क्योंकि बाजी की कुछ बातें हमारे पास हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं बाजी की, फैमिली पिक्चर्स हमारे पास हैं, तो बाजी जो है ना अपने भाइयों की जाके मिन्नतें तरले करेंगी कि भाइयों आपने खुदारा कोई जवाब नहीं देना। फिर तुम बाजी को जानते ही नहीं हो, तुम क्या जानते हो बाजी को? सीकर भाई, क्या मैंने आपको रोक के नहीं रखा हुआ था? सही बात है कि नहीं मोहन करना। भाई, मैंने आपको नहीं रोक के रखा था। इनको लगता है कि इन्होंने देखा कि भाई चुप बैठे हैं ना, तो बिल्कुल। ये बोलते गए सीकर भाई। हालांकि और मैं- इन्होंने अल्लाह माफ करे करेक्टर के ऊपर भी बातें कर की, इन्होंने कोई छोड़ा नहीं, कोई बकवास छोड़ी नहीं। बिल्कुल, इनको लगा कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, बाजी डर जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक आध फिक्रा कह दूं, मुझे कुछ पता नहीं इन सारी स्टोरियों का, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट बहन आप बार बार मेंशन कर रही हैं, मुझे रिसेंटली इस तरह 2-3 ख़वातीन ने बहुत जिच किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू पिस ऑफ एवरी टाइम आई कम अक्रॉस। तो मुझे फीलिंग होनी शुरू हो गई है कि साइकोलॉजिस्ट बहन कौन सी होंगी। नहीं वो बस मुझे पता नहीं क्यों लगता है वो सादा बहन है। उनको पता नहीं है कि ये कितना बड़ा ये that's what she doesn't know about कि how big of a manipulator he is literally she doesn't know। बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी भाई। आपने कहा इनको लगता था कि ये सब कुछ है, तो बहन ये एक हम भी चले भाई है आपके, बहन आप तकरीबन 1 साल से तो ऊपर हो गया ना आपको एडी की, जब डीपी लगा के आप एडी के साथ हैं, साल तो हो गया आपको। जी जी। बहन इस साल में एक और भी हमारा भाई था जो बाबर के साथ बैठता है, उसने बाबर को क्यों नहीं आज तक रोका? कौन सा भाई? हसन काजमी भाई। अरे वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना सीकर भाई, हसन काजमी भाई ने ही तो जाके मेरी बातें बताई हैं उनको। इत्थे रख सीकर भाई, मैं पहले आपके आने से पहले ये शिकायत करी थी मुर्शद भाई से कि बाबर भाई ने बैठ के मेरा नाम जोड़ दिया उस्मान भाई के साथ, और कह दिया सरवा बाजी को कि उस्मान भाई की मोहब्बत में आपको गाली निकाली थी। तो बस मैंने कहा उस्मान भाई की मोहब्बत में क्या, मैं तो उन बेचारों को जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा। अस्तर लेकिन हाँ, मैं ये चीजें लानिया बोलती हूँ डंके की चोट पे, जिसको जो बोलना है बोल लो। काजमी भाई की मोहब्बत में मैंने बड़े काम किए, ओए बड़े काम करवाए हैं उन्होंने मुझसे। काजमी भाई की मोहब्बत में मैंने एडी छोड़ने पर तैयार हो गई थी। ओ अल्लाह मेरे दिल में ऐसी बातें दबी हुई है ना, मैं लीगल रीजंस की वजह से नहीं बोल पा रही हूँ सीकर भाई, क्योंकि मैंने छोड़ना नहीं है, मैं नहीं छोड़ना। आपने गलत जगह पंगा लिया, आपने मेरी वर्नेबिलिटी देखी थी, आपने ये नहीं देखा कि बाजी जब स्ट्रांग होने पे आती है ना, तो बाजी के पास सपोर्ट कितनी है। नहीं, इन्होंने और बहुत मैंने- मिसकैलकुलेट किया चीजों को, बहुत मिसकैलकुलेट। सीकर भाई, मैंने मीर भाई की लाइफ में ये बोला था, मैं आपको भी बोल दूं, इनका आज तक पाला पड़ा था कमजोर बहन भाइयों से, गरीब बहन भाइयों से। वो कहते ना बेचारे जो कमजोर होते हैं, किसी ताकतवर से नहीं लड़ पाते, तो कहते हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। वो बेचारे और कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कबूतर की शक्ल रखने वाले लोग जिनको फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो लीज और फाइनेंस पर गाड़ी निकाल कर खुश हो रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे पास नई गाड़ी आ गई है, तुम्हें पता नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाजी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। बाजी ने शेर मारे, मुझे दिखाओ और कोई बाजी यहाँ पर जिसने शेर मारे हो।
तुम बाजी से पंगा लोगे, अब तुम भुगतो। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ सीकर भाई, देयर इज नो गोइंग बैक। और मैं ये अपने लिए भी नहीं कर रही हूँ सिर्फ, ये फ्यूचर में कभी किसी बहन को ब्लैकमेल करने से पहले 100 बार सोचेंगे बिल्कुल। कि ये बहन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर निकल आई, हमारी गिच्ची पकड़ ली इसने आगे, तो हमारा हाल क्या होगा। मैं इन लोगों की वजह से अपना बीपी भी हाई नहीं करती। मैं तो खुलेआम एलानिया कहा है, आपको जो करना है करो, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ना वो आपकी सोच से भी दूर है। और मैं फिर से बोल दूं, कोट ऑन कोट सीकर भाई, समझने वाले को इशारा काफी है। आई लाइक पीस, आई वांट पीस एंड आई प्रमोट पीस। ऐसे ना। ये जो आपके अल्फाज है ना, ये मैं आपकी गिच्ची में डालूंगी। आहा। आहा, आहा। डॉक्टर साहब आपने परेशान नहीं होना, आपने घर जाके ना सिरतुल मेहंदी पढ़नी है, आप परेशान नहीं हो। जाके तबलीग ले। ਯਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਝੋਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। जी भाई चलो मैं बड़ा सख्त मैसेज लिख रहा था, मैं लिख रहा था, डॉक्टर साहब चोरी चुपे सुनते हैं बातें, शर्म नहीं आती आपको? आपको पप्पे कुटने वाली कब की आदत डाल गई है। फोकस करो। वी लव यू डॉक्टर साहब, तगड़े हो जाए आप भी। मुझे ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, अब सारी बात है, आप जब आप भाई होते हो या कुछ भी होते हो, कभी भी मुर्शिद भाई या बहन, आप ना किसी के साथ रहते हुए आपका मकसद ये नहीं होता कि आई हैव टू गेन एक्सेस टू हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल थिंग्स। नॉट एट ऑल। जस्ट इन होता ना, बंदा कहता है जस्ट इन केस। आप जब किसी को भाई बोलते हो ना, किसी को बहन बोलते हो, आपके ज़हन में जस्ट इन केस कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। कभी भी आप ऑन द फेस वैल्यू चीजों को लेते हो। अगर किसी ने कहा ना कि यार मैं ये हूं, तो आपने कहना हाँ यार तू ये, बस ठीक है। मैंने क्यों कुरेदना है, मैंने क्यों पते लगाने हैं कि हाँ पता चले असल च की है। लेकिन बिल्कुल जब एक बंदा आपके साथ ऐसा मैनिपुलेटर जुड़े जिसको मकसद पता हो कि मैं फ्यूचर में क्या करना है, अब हमें कुछ चीजें पता चलती है ना कि ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर एक बंदा अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से हाइड करता है अलोंग द वे। ये बाद में आपको समझ आती है चीजें कि कहां मौकों के ऊपर उस बंदे ने अपनी आईडी छुपा ली। क्यों? बिकॉज ही हैड इन माइंड के जस्ट इन केस कल को मुझे इसके खिलाफ होना पड़ता तो इसके पास मेरा कुछ ना, मेरे पास इसका सब कुछ हो। ठीक है भाई, आपके आने से पहले मैंने एक बात कही थी, आप नहीं थे। मैं मुर्शिद भाई को बता रही थी, मैंने कहा देखिए बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। बहन ने भाई को कोई बात बताई, भाई कहता है आगे से, हो मुझे बता दिया, आज दोबारा इसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करना। और बहन कहती है यार आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, पूरी दुनिया को पता चल जाए, आई डोंट केयर, राइट। तो वो आगे से कहता है नो गिव मी अ प्रॉमिस, यू विल नेवर टेल दिस टू एनीबॉडी, एक्सेप्ट प्रॉमिस मी। और दिल में सोच रहा था है आपका वाला डायलॉग, मैं दसांगा ए ते मैं दसने। नहीं उसने कहा होगा प्रॉमिस यू विल नेवर टेल दिस, ओनली आई कैन। इसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ भाइयों। देखे हमारे पास साइकोलॉजी बहन तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं, हम प्रोफेसर हैं, ठीक है। और किसी को शक हुआ हो तो डॉक्टर जिक्रिया साहब को मैंने अपना लेक्चर एक भेजा हुआ, डॉक्टर साहब प्ले भी करके सुना दें। अच्छा देखे बहन, बात इस तरह होती है कि एक टर्म है, उसके अंदर उसको कहते हैं, वो ना पूरा एक साइकिल बनता है। साइकिल के अंदर एक होती है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, आप करते हैं उसको आइसोलेट करते हैं इकोनॉमिकली। फिर आप उसकी खास तौर के ऊपर उसको आइसोलेट करते हैं सोशली टू गेन एक्सेस टू द होल थिंग, ठीक है, काबू करने के लिए। अब ये जो टर्म होती है ना कि ओए ए जड़ी गल तू मैनू दसी, तू किसे नहीं दसनी, आप उसको अपने कंट्रोल में कर रहे होते हैं उस टाइम और उसको बताते हैं कि यू आर अ वनरेबल गाय, दिस इज योर वीकनेस। ये ऐसे ही है मुर्शिद भाई कि एक बार आपको शायद किसी को याद हो, शौक चौक होता था एक कि लाहौर में, अगर कोई रहा आपको पता है शौक चौक, ये जौहर टाउन के पास होता था इधर
अकबर चौक के आगे पीछे शौक चौक होता था, नहीं। वहां पे एक नाका था। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तो मेरी गाड़ी की वो जो डिग्गी कह लें बैग में, उस पर ट्रक में मैंने शीशा रखा हुआ था, तो वो मेरे साथ होता था फुल टाइम, ठीक है, काफी साल 10 12 15 साल हो गए। तो मैंने उस पर रखा, उसने ना वो बंदे ने हाथ खोल के ना डिग्गी साथ ही एकदम शीशे पे हाथ रख के कहता एक मिनट मैंने निकाला, बाकी पुलिस ने देखा। मैं कहा तू बखा दे मैं कहा मैं लॉन्चर रखे है, मैं कहा मैं रॉकेट लॉन्चर रखे है, बोलते तो बोलता शीशे ही जब्त कर लेंगे ना। आप टेक्निक देख रहे हैं मुर्शिद भाई, बिल्कुल। कि इसको मैं ऐसा डराऊं कि तू पता नहीं हथियार लेके जा रहा है, तो बाकी पुलिस वाले ने देख ले तो ये मुझे मौके भी कहे अच्छा तू उधार पे ले ले। मैं कहा तू बुखा दे मैं ले। उसने जनाब बाकी को दिखाया, उन्होंने कहा शीशा लेना पैना। मैं कहा ले लो जी शीशा। मुर्शिद भाई अगले दिन मैं थाने से जाके SHO से शीशा अपना वापस लेके आया। मैं कहा शीशा दे, वो भी मुंह देख रहे, कहता शीशा लैन तो कभी भी कोई नहीं आया। कहता पहले ही पता है शीशा लेना आ गया। अच्छा मुर्शिद भाई, ये मैनिपुलेटर्स की और ब्लैकमेलर्स की एक साइकी होती है, दे आइसोलेट यू फ्रॉम अदर पीपल, और वो आपका राज लेकर ना आप ये सबसे मेन चीज होती है ना कि सीकर भाई उसको अपने अंदर करना है कि भाई देख ही मैं तेरे सबसे बड़ा राजदार मैं हूँ। ये चीज मैंने सीकर भाई तो मुझे वही एक चीज की समझ नहीं आई है वैसे सीकर भाई, ये क्या कहते हैं कि सही कहते हैं, क्या कहते हैं अली भाई, एक्सपोज सारा एक्सपोज, ठीक है। अच्छा आपको मैं एक इसकी हिस्ट्री दे दूं, जिधर तक मैं जानता हूं उससे अब मुझे पता चला, खैर अब कुछ लोग ऐसे मुझे मिले हैं, तो जारी बात है बहन ने जिस तरह कहा है कि इनका पाला पहली बार कुछ ऐसे लोगों से पड़ा है, और वाकई हमने अब थोड़े हाथ पांव मारे हैं। तो मुर्शिद भाई ये भी एक किक है, ये भी एक नशा है, और कईयों की ये खसलत है, ये जो है ना एक्सपोज, पापा एक्सपोज, मम्मी एक्सपोज, ताया एक्सपोज, इनको भी किसी ने एक्सपोज किया हुआ है, ये लोगों को एक्सपोज करते हैं। और अगले दिन भाई के मुंह से ये बात निकली थी कि मेरी तो ब्रॉड ही एक्सपोज ब्रॉड है, ठीक है। इसने नादर को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। जी बताएं डीजे फजल साहब, नादिर को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। जिस दिन इसने ब्रॉड लगाई थी ना, कोई हमसे नहीं पूछा। अब बंदा पूछे कि तू अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ये काम कर रहा था। नादिर की फोटो आ गई थी, नादिर की, आई गॉट नादिर। अच्छा जी, अब नादिर तो हमने देखा हुआ था, लेकिन नहीं वो नादिर असल नहीं, नादिर असल मेरे को। अच्छा जी, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ब्रॉड बैठी है 60 पे 70 हो रही है, 75 हो रही है, सेम पैटर्न जैसे मेरी ऑडियो लीक करने के लिए कर रहा, ठीक है। नहीं अभी हाँ जी नादर साहब, जैसे मुझे बोल दिया था सीकर साहब नहीं आना, फिर नादर माफी मांग लो। अहीर जो है ना, ये नया टिकटॉक पे आया था उन दिनों। अहीर जानता नहीं था ना हमें ना किसी को। अहीर भी इसकी ब्रॉड पे 1-2 दफा मुलाकात हुई थी, अहीर आके बैठ गया इसकी ब्रॉड पे, उसको भी नादर पे तब थी। उन्हें कहा भाई नहीं खोलना, 3 घंटे तो मैनू हो गए थे बैठे हुए, तो प्लान किए आज दिखाना है कि नहीं। वो बेचारा बैठा है कि भाई नादर दिखा, काम मुके, ये गवाही ले लीगा, अहीर को बुला के पूछ लीजिएगा। ये कोई वो पर्सनल नहीं है, ये उसके ऊपर है, लाइव के ऊपर की बात। अहीर के यार भाई दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये फुदू बना रहे हो मुसलमानों बैठ के, दिखाओ। लो जी, कभी टांग आ रही है, अब नादर साहब का फेस काट के नादर ਇਹ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਔਰ ਨੇਵਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। नहीं तो सप वाले नहीं सुनाते कि वो मैं सप बहाना तो पूरी दवाई बेच के टुर गया। हाँ बिल्कुल जी, ऑन रिकॉर्ड है तो साढ़े को लाइव भी मेरे ख्याल से पई हुई है, ऑन रिकॉर्ड है बड़ा सा। अच्छा ओ जी हो रहा है। अच्छा इतनी देर च ओनू नादर को, अब ये नादर की फोटो है, ये शक्ल काट दी है, नादर माफी मांग लो, मैं बताता हूँ तुम श्रीलंका कैसे गए थे, बहन को कैसे लेके गए थे, वालदा को कैसे बुलाया था, उन्होंने हल्के हल्के हिंट दे के ना कि लो जी हिंट है, नादर माफी मंगला है, कल तक दा लो जी एंड ते की होया जी, कल तक दा टाइम है तेरे को। लो जी वो सारी 70 दी 80 दी ब्रॉड चला के लोकी जना एकदम जदे ऐ क्या ना ते ब्रॉड आ गई 20 ठीक है, लोकी तुर गए। मतलब मकसद है ब्रॉड चलाना, जाहिर बात है। हाँ मकसद इस्लाम की तबलीग थोड़ी है, मकसद क्या ब्रॉड चलाना, सनसनी पैदा करना। अच्छा जी
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੱਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਐਸੀ ਰੀਤ ਐਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦਿਨ लग गया ਤੇ अबाबा ने कहा जी कल इंशाल्लाह एक्सपोज होगा। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में एक दिन डिले कर दिया ना भाई, इश्क में एक्सपोज करांगा अल्लाह ते रसूल की मोहब्बत च, डिले करांगा अल्लाह ते रसूल की मोहब्बत। अच्छा जी, ते जी डिले हो गया। अगले दिन फिर जनाब मजमा लगना सी, लेकिन अगले दिन तो पहले एक छोटा जिहा काम होया, मैं हुण ओह नहीं दसांगा कि की होया। बाबर साहब ने नहीं लाई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਡੱਡਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼, ਪਾਪਾ ਐਕਸਪੋਜ਼, मम्मा एक्सपोज, ताया एक्सपोज। वो की है सीकर साहब आप भूल गए हैं, आपको मैंने क्या कहा था, सीकर साहब आपके रिश्तेदार है। लो जी और ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ? ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੌੜਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਐਕਸਪੋਜ਼, ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ बेचारा फिर हो गया। ਏਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲਾਤੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲਾ ਛੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। बिल्कुल ठीक है, फिर इन्हें क्या असल च इन्हां च रसूलुल्लाह दी मोहब्बत नहीं हैगी। ठीक है, मतलब कमाल है यार, क्या वही ना अवल बात सीकर भाई कहंदा तैनूं गोली मार ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਚ। इश्क ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अब मुर्शिद भाई देखिए मजे की बात क्या होती है, मैंने वो जब मामला हुआ ना मैंने वाकई छोड़ दिया अल्लाह ताला को। ये डंडा पीर गवाह है, मैसेज पढ़ा हुआ डंडा पीर को। डंडा पीर कहता मैं जा रहा हूं, पर मैं कहना अल्लाह के वाले, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया मामला। यकीन होता है यार, आपको एक बंदे ने ज्यादती की है, झूठ बोला है खास तौर पे, और अल्लाह रसूल का नाम लेके बोला है, वो तो अल्लाह ताला खुद निबड़ेगा। बेशक मैंने छोड़ दिया। और आप देख ले मुनाफिकत कैसे एक्सपोज हो रही है, इस तरीके से मुनाफिकत एक्सपोज हो रही है कि अब दुनिया पूरी देख रही है कि जनाब है देखो पूरी दुनिया को खुद बढ़ाया गया। मैं तेरी खैर मारिया शेर कोई नहीं बचता, मैं पहाड़ पहाड़ दूजा वेख लो नंगा हो गया। निकल आई ना सलातो दरूद पढ़दे दी ऑडियो आ गई ना, बिल्कुल। ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੋਡਕਾਸਟ दादा ਤੇ ਅੱਲਾਹ के काम है ना। भाई अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बे है। बिल्कुल। तो मुर्शिद भाई मैंने बिल्कुल, लेकिन इस बंदे ने ना ब्रेक नहीं लगाई, इस बंदे ने ब्रेक नहीं लगाई। और मैं इस हद तक मेरा ज़हन मेरा तैयार था कि मुझे पता था कि आगे फ्यूचर में क्या, मैंने कहा नहीं इस ऑडियो में कि किस किस के नाम तक इवन ये टंगे जाएंगे। फिर मुर्शिद भाई ये मुझे जानता है बड़ी तरीके से, असल में फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा जानता है, सारा कुछ जानता है। मैंने फिर अपना माशा अल्हम्दुलिल्लाह किया होमवर्क, बिल्कुल किया होमवर्क। फिर मैंने जस्ट इन केस होमवर्क किया, और सिर्फ मैंने नहीं फिर किया, फिर काफी भाइयों ने किया। और अब हमने कहा कि कर भाई सब कुछ करो, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नाम लेके अब तुम करो जो मर्जी करो। नहीं सीकर भाई, मैंने तो कभी काजमी भाई से तो उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम भी नहीं पूछे थे। ये मैंने भी तुम्हें बताया, अल्लाह भी गवाह है। लेकिन अब मैं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में लीक कर दूं क्योंकि आप मेरे पास पहुंच गए, मैं बता दूं अब। ये बात
मैं और बताती हूँ वैसे भाभी आपको का नाम मजे की क्या है। बात बताऊं, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है इस टाइम आप पे, मुझ पे, उसामा पे, खास तौर हम तीन, उस्मान पे, सारे भाइयों पे, हम पर एक फर्ज है इखलाकन कि हम लोगों को इन बदकार दोनों लोगों से बचाएं, बेशक। जो मतलब जो इन्होंने दूसरों का हमारे साथ किया है, वो किसी और के साथ ना करें। हमारे अलावा अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंजर आम पर नहीं है, जिनके साथ प्यारी हुई हुई है। वो बहुत मतलब लंबा केस है वो। अब वो सब थैंक्स टू सामा ठीक है भाई। भाई, आपके आने से पहले मैं ये ऐलान कर चुकी हूँ कि कोई बहनें अगर ऐसी हैं जो कमज़ोर हैं, डर रही हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप मेरे इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता करो, आपकी सारी लीगल कॉस्ट कवर की जाएगी। आप आओ मेरे पास, छोड़ना नहीं है। चेक करो की है जी, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ 70 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇਰੀ 70 ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ 100 ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਤੇ ਐ ਲੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੀਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। गलबात ही कोई नहीं हुई होती। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ। जल्दी ब्रॉड बंद कर छड़ी ਇਹਦੀ ਬਰॉड ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ 100 ਤੇ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਰॉड ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। और एडी की ब्रॉड देख ले, मेरी ब्रॉड लगती है ना सीकर भाई। ये अभी कुछ दिनों से, जब से ये मामला शुरू हुआ है ना सीकर भाई, हाँ जी। तो उस दिन से लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कि भाई यहाँ से कोई ना कोई बात मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये भी दोनों नीचे बैठे हुए हैं, ये दोनों नीचे बैठे हुए हैं आदमी। सीकर भाई यहाँ से गुजर के, सीकर भाई ये वाहिद ब्रॉड थी जो कि मैं लगाता था। ये आपको पता है मैंने क्यों रेगुलर शुरू की थी उस सीकर भाई? मैं एक दफा ना मुक्के वाले दी ब्रॉड नहीं है कि मैं वैसे ही स्क्रॉल करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादातर अब रहता ही नहीं टिकटॉक पे ना, तो मैं स्क्रॉल करके ना तो जा रहा था, तो वहां पे ना मैंने फर्स्ट टाइम ईडी का स्टिकर देखा। मैंने बोला यार ईडी का स्टिकर यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है बंदा कौन। अच्छा। मैं वैसे ही गया तो वहां पे लगे हुए हैं जी, कहंदा असी वेख लांगे कि भाजी की होंदा है, केड़ा ब्रॉड लांदा है। मेरे को आया, मैंने बोला यार ये बंदा है ना, इसी को बंदा जानता है ना, मैं इससे वाकिफ हूँ। ये कह रहे कि यार ब्रॉड लगेगी। मैं बोला यार मैंने कुछ अरसे से अपनी ना ब्रॉड नहीं लगाई है, बवक्ती लगाता हूँ। मैं बोला आज से मेरी ब्रॉड रेगुलर लगेगी। मैं बोला जा अगर किसी से बंद होती है तो उसे बोल मेरी ब्रॉड बंद कराए। कहंदा है मनु पे, कहंदा मैं क्या अल्लाह दी कसम तू ब्रॉड बंद कराई तो मैं तेनू ला के वहावांगा। तो मैं क्या इस टाइम ते लगेगी या तो मैं ला के वहावांगा तो हुण डेली लगनी है। मैं क्या कर ला, ये इस वजह से फिर रेगुलर खरीद ली थी मैंने। पहले एक दो दिन वो करता था, क्योंकि मैं आपको पता है वो आपने ही सिखाया था कि भाई किस तरीके से वो प्ले करनी होती है ना, जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपसे मैंने बोला था सीकर भाई ये कैसे करते हैं, मेरे को ना वीडियो प्ले करनी है। आपने बोला था कि इस तरह से करके ना तो कर लेना, मैंने करके वीडियो प्ले करके छोड़ देता था। बिल्कुल। इसमो अहमद तो मैंने इतनी चलाई है सीकर भाई, उसामा भाई तंग आगे मुझे कहते हैं यकीन मान इसकी पूरी ऑडियो मेरे को याद हो गई है। बड़ी चलाई थी मैंने इसमो अहमद, ये मेरे को यकीन माने नहीं मिली, नहीं तो सीकर भाई मेरे को इतना वो होता है ना उसके ऊपर। लेकिन अभी तो मेरे पास ऑडियोज बहुत ज्यादा है, तो वो जब भी मैं फ्री होता हूँ फिर मैं वो लगा के तो छोड़ देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया तो मैंने जितनी है ना वो क्या कहती है, एक तो मेरी ये है ना दूसरी भी आईडी है, मैंने उसके ऊपर भी लगा देनी है अभी ऑडियो। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं मुर्शिद भाई जी, किस दिन आपको कुछ पर्सनल मैं बताऊंगा एंड दैट इज रिलेटेड टू यू, वो मैं आपको कुछ ना पर्सनल बताऊंगा। मुर्शिद भाई आपको पता चलेगा कि किधर किधर बुग़्ज़ पाया जाता है, किस किस लेवल के ऊपर बुग़्ज़ पाया जाता है, ये आपको अभी पता है। उसामा आपको ना बताएगा, बस आप हैरान और हक्के बक्के रह जाएंगे यार। एक के आपको लिए याद है जी सितंबर की शुरू में मैंने आपको कहा था कि सीकर भाई मैं रिटायरमेंट लेने वाली हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी मुझे मोटिवेटरशिप से भी हटा देना, मैं नहीं टाइम दे पाऊंगी। अब देखिए
मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि मैं तो वैसे ही जा रही थी, एमी छेड़ दी। तूने मुझे छेड़ा क्यों जाते जाते? मामा अब भी तो बैठे तब हुए तक थे, नहीं और जा आपने उसको भी छेड़ दी। मतलब मैं जा रही थी और उनको भी पता था कि ये जा रही है। अगर आपको बताया तो आपको लगता है उनको नहीं बताया? कम ऑन। उन्होंने कहा भाई ये तो जा रही है, डरपोक है भाई, डरती है। और डरती मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ। और मैंने ब्लॉक करने से पहले ना सीकर भाई ये कहा था, आखिरी मैसेज भिजवाया था, मैंने कहा था देखें मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, लेट्स फिनिश दिस अमिकेबली, ठीक है? ना आप मेरी कोई बात करो ना मैं आपकी कोई बात करूँ। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि काज़मी भाई अगर आपने मेरी कोई बात की या मेरे किसी भाई की भी बात की, मैंने ये भी कहा था, तो मैंने कहा था मुझे जानते हैं, आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, यू डोंट नो माई पावर। मैं आपको वहां पर पकड़ूंगी ना जहाँ पे आपने मुझे लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा। इनको लगा यार ऐसी ब्लफ कर रही है, और मैं तो ब्लफ करती ही नहीं हूँ, मैं तो बोलती वही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और जो मैं कर नहीं सकती हूँ मैं तब तक नहीं बोलती जब तक मैं उसको कर ना लूँ। मतलब आप मुझे 1 साल में इतना भी नहीं जाने हो तो फिर आप पर लानत है। अच्छा, ये पावर होता है, पावर नहीं होता। पावर ही होता है। अदर थिंग, और आप भाईजान ब्रिटिश इंग्लिश है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर बहनों की करेक्टर असैसिनेशन करोगे? हाँ जी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। शर्म नहीं आई आपको? इनको आप तो शर्म मुझे नहीं दीन आती। का सबक सिखाते थे और जाते जाते आप मुझे ये कह रहे हो कि बहन मैं सैयद हूँ। और आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, मैं कहती हूँ ਇਹ मुसलमान ਚੰਗਾ कैसे चुप ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ रह ਹੈ गए? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈ। सीकर भाई कि ये कह के चला गया कि जी मेरी नाना पे अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। आप अपने आप को अहले बैत के साथ कंपेयर कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। नाउजुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। ऐसे थे अहले बैत? फिटे मुंह तुम्हारा। ये क्यों नहीं मुसलमानों ने इसको गुस्ताखी पे पकड़ा? कोई ऐरा गैरा निट्ठू ला ला के बोल देगा भी जी मेरे नाना है। ऐसे कैसे नाना बना दिया गुस्ताखी तुमने? ये गैंग साथ था गुस्ताखी ना है। जी। हाँ, गुस्ताखी गैंग साथ था। हम लोग इस लेवल पे जाते नहीं है, हम लो लेवल पे स्टिक नहीं करते, स्टिक नहीं करते। अच्छा सीकर भाई, पहले दिन याद है आपको, इसने मुझे टेक्स्ट की इनबॉक्स में किया था कि ये एडी का स्टैंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एडी का स्टैंस क्या है इसके मुताबिक, जो आज इसने पढ़ लिया? जो ड्राइवर बन गया। हाँ, तो इसने खुद इसकी निकली है ना ऑडियो। हाँ हाँ, खुद निकल गया। अब ये एडी का स्टैंस था या है इसके मुताबिक? ये तो मौसम भाई बाकियों से पूछना चाहिए। ये तो बाकियों से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है, गैरतमंद हो। ਗੁੱਜਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਹੈ। अल्लाह रहम करे। हाय, नहीं इस पे ना, इसीलिए खास तौर के ऊपर ना इस बंदे पे एक होता है दुख होना, एक होती है डिसअपॉइंटमेंट। बहुत गलीज हद तक ये बंदा गिरा है। और इस पे ज्यादा ये पता है किस लिए? आप इसकी रियाकारी देखो, इसका दीन को बेचना देखो, ये जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिस वो हाई पेडेस्टल से बात करता है जानबूझ के, और मतलब उसके बाद इस तरह की हरकतें। हम तो जानते हैं ना इसको, हम जानते हैं। मैं डंडा पीर को यही कहता होता, डंडा पीर तेनू लवे मौला, तूने बड़ा किया। रोका है, बड़ा मना किया, लेकिन वो भी बात नहीं आती। कसम से मुर्शिद वो भाई, जैसे ही एक दफा ब्रॉड नहीं, के ऊपर आए हैं, आते साल ही यकीन माने सबसे आयते शाह साहब जलाली हुए पे ने लो शाह साहब आ गए जी। अब मैं खामोश होता हूँ। शाह साहब अब इतनी सी देर है, वो बंदा औकात से बाहर हो गया, 6 फुट। मेरे पास पड़ी हुई है। वो नहीं पड़ी नहीं हुई है। जितनी दफा ऊपर शाह साहब बैठे हुए हैं, यकीन मानो जैसे ही डंडा पीर भाई ऊपर आए हैं आते साल ओ शाह साहब बैठे हुए हैं, यकीन मानो जिन्हों के घर नहीं आवाज जानी उन्होंने घर भी जाती थी।
वो कहते ओ शाह साहब बैठे हुए मोहतरम। नहीं नहीं मुर्शिद भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये अकेला होता है ना तो इससे बात ही नहीं निकलती। नहीं जब बोल सकता, वो बोल नहीं भाई सकता। डिबेटर नहीं बात कर सकता है मोस्टर भाई, डिबेटर का रवैया और हो। ये मुर्शिद भाई, जब ये बात निकली थी ना कि शाह साहब आपका जलाली और जो भी है दूसरा लफ्ज है मुझे याद नहीं आ रहा, आपका पता नहीं चलता उस दिन जलाली आप। का मतलब है, शाह साहब आज आप जमाल में हैं कि जलाल में? जलाल ओह, जी हाँ जी, जलाल और जमाल जो भी है। ओह, तो वो उसी दिन उससे बात ही नहीं थी निकलने हो रही। फिर एकदम झंडा पीर भाई आए, मैं भी आया, दूसरे भी आए, तो उस वक्त ये फिर इसको थोड़ा हौसला मिल गया। मैं सिर्फ ये एक जो बात डिबेटर याद होते हैं कराना ना, मैं चाहता हूँ। आपको एक चीज बताऊं मोस्टर भाई, जो डिबेटर्स होते हैं ना, उन्हें इन चीजों, उन्हें डिबेट का बस जो है ना जुबान का एक चस्का होता है जो नहीं जाता। हम्म। ठीक है, उनको इन चीजों से नहीं है, उनको बस इस चीज से है कि भाई वो जो है ना मेरी जुबान का चस्का जैसे भी हाल में, जिस हाल में भी उसने रखना है बस। हम्म। अल्लाह, उनका ये मुझे ना याद आ गई सीकर भाई की एक बात ना। सीकर भाई याद करें, क्या चीज? शायद ये रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ 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 हाँ। ओ, नहीं, मैंने कहा था, ये नहीं कहा था कौन है, मैं कहा मुझे पता है आप कर रहे हैं। हेलो टिकटॉक फैंस। नहीं वो नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर उमूमन तौर पे जब साथ होते थे, याद है? रिकॉर्डिंग ऑन कहना ही है तो हाँ, रिवर्स गियर लग जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बोले कि क्या बात हो रही है समय, मैंने कहा सीकर भाई से पूछे, सीकर भाई ने क्या कहा था। आह, क्या बताए शाह जी? सीकर भाई मेरे को एक चीज बड़ी परेशान की है ना इन दिनों के अंदर, वो एक चीज है सीकर भाई कि इन लोगों के पास जिसका डेटा है वो सारे लीक होंगे इश्क में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अनलेस को बंदा शेर मार दे। मतलब मुर्शिद भाई, बाप आज हो सकता है, कल हो सकता है, लेकिन अब आप देखिएगा कि वो बात वो सही है बहन की कि ये गलत हो गया काम थोड़ा सा ना। नहीं सीकर भाई, मिसकैलकुलेशन। बाबर भाई अगर वो लाइफ ना लगाते, खुदा की कसम मैं कासमी भाई के साथ ही चली जाती। आपको पता है 6 महीने पहले मैं एडी की डीपी उतार रही थी कासमी भाई की मोहब्बत में, और मुझे ऐसी सख्त किस्म की नफरत हो गई थी आपसे सीकर भाई, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ऐसी सख्त किस्म की नफरत हो गई थी कि मैंने उनको कहा था मैं ऐसी दोगलेपन में बैठ नहीं सकती। अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं कहती हूँ जितनी मैंने मोहब्बत की है ना इस शख्स से, भाई भाई कर करके, भाई भाई। अच्छा मुझे कहते हैं नो यू विल नॉट डू दैट, यू विल डू दैट व्हेन आई विल टेल यू टू डू इट, प्रॉमिस मी। डिक्टेटरशिप, इजाजत ग्रुप। तब मुझे उतारने नहीं दी, लगाई भी मैंने काजमी भाई की वजह से थी। इन्होंने टिकटॉक पे एक पोस्ट लगाई थी कि काइंडली सब ये डीपी लगाएं, मैंने लगा के इनको मैसेज किया था टिकटॉक पे, डन। इन्होंने कहा जज़ाकल्लाह बहन। तो जब उतारने की बारी आई तो मैंने कहा मैं तो उतार के जा रही हूँ भाई, ऐसी मुनाफिकत का हिस्सा मुझे तो नहीं बनना है। मैं मुझे एक तो बहन कुछ और शो आपको कराते एक सीकर भाई। माजरत, सिर्फ आपको, आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा, मैं एक पैगाम दे दूं कुछ खुली आंखों वाले लोगों को जो सुन रहे हैं। और मैं देखें, आपने नोट किया होगा, मैंने कभी कभी आपके बारे में कोई बात नहीं की, कभी भी। और ऐसा नहीं है कि आई एम अनअवेयर ऑफ थिंग्स, आई एम वेरी 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 वेरी, जिसको आप कह सकते हैं कि अलर्ट, और आप ये भी कह सकते हैं वेल अवेयर्ड कह ले, या मतलब अटेंटिव गाय। और आई पे अटेंशन टू द डिटेल्स, मुझे है, और मैं बहुत जो है इन्फॉर्म्ड आदमी हूं। मेरे भाई बच जाए, आपको वहां डसा जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। बच जाए, अभी भी कह रहा हूं, बच जाए, बस इतना ही मैं कहूंगा। मीडिएटर से भी बच जाए, और हर इस तरह के तमाम जो है ना चीजों से बच जाए। मैं अभी आपको कह रहा हूं, आई केयर फॉर यू,
और मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। मैं आपका भला दिल से चाहता हूं, लिटरली। और मुझे पता है एक दौर में आप भी मेरा भला चाहते थे, और आप अननोन बन के भी मेरा भला चाहते थे, तो मैं अच्छा अप्रिशिएट करता हूं। और मैं हमेशा कभी भी, मतलब देखे, खानदानी इंसान की निशानी ये होती है कि वो कभी भी अपना पर्सनल, जो उसका कोई चक्कर होता है ना, या असूली लड़ाई, वो असूल पे लड़ता है, कजातियात पे नहीं। मजा आता है। तो मजा ही तब आता है। सही बात। आपको याद है सीकर भाई, बड़े महीने पहले मैंने आपको एक बंदे के बारे में बताया था, समथिंग इज ऑफ। याद करें आप, बड़े बंदों के बारे में मैंने कहा था, इट डजंट फील, आई डोंट फील गुड इन माय बोन्स हाँ अबाउट दैम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बंदों के बारे में, सबके बारे में सही पेशेंट कोई निकली है, और सबके बारे में। भाई उसको हुआ पता है क्या था? ही वेंट बिहाइंड आवर बैक, और इसने बहुत बैशिंग की हमारे खिलाफ किया लोगों को। I know. I just felt it after a long time. यार He वैसे came on your हैरानगी live है video. He सीकर said भाई, Assalamu alaikum. I was like, oh shit. मेरे को जी? किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया। मुझे भी नहीं किया, मुझे ही कर लेते शाह जी। नहीं, आप पे ट्राई मारता तो रहा है। आप मेरे पे? नहीं मुर्श इस पे, उसामा पे। ठीक है, मुर्शद भाई का उसको आइडिया हो गया होगा ना कि नो नॉनसेंस है भाई, नो नॉनसेंस वाला चक्कर है इधर, वो नहीं चलना। उसामा को करता तो रहा है, उसामा को कभी अब हम यूं करके टॉपिक किया करेंगे। उसामा भाई याद आया? हाँ वो याद है। अब तो एडीयू मैंने हो जाएगी, अब एडीयू हो जाएगी, अब हम छोटी छोटी आपस में डिबेट्स किया करेंगे। तो उसामा ने कह दिया, शाह जी वी डोंट डू डिबेट्स। व्हाई? किसने कहा? क्यों? ये डिबेट्स ही होती हैं, आप लोग डिबेट के नाम से इतना चलते क्यों हैं? सामने याद आया? बड़ी बिल्कुल। हताश है इसकी। हाँ, मेरी याददाश्त मैं भूलता नहीं हूँ सब। ये लाइव के ऊपर बातें हुई, मुर्शिद भाई की लाइव के ऊपर। जी बिल्कुल। कि आप लोग क्या, ये आपस में जो होता है, ये डिबेट्स ही तो होती हैं जो हम आपस में बात करते हैं। अब हमने करना ही है, हम Discussion। पहले हम टॉपिक लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, विल मेक सम टीम्स, जो दो टीमें बनेंगी, और हम आपस में छोटी डिबेट्स किया करेंगे। फिर उन्होंने कहा चले आप आपस में डिबेट करें। ओ जियो, मैं कहा ये है जी एडी चल रही है, चेक करें। बड़ी बड़ी चीजें मुर्शिद भाई मैं नोट कर चुका हुआ था, और मैंने बता दी हुई थी भाइयों को। मुझ तक बहुत सी चीजें पहुंच गई हुई थी। इवन मुर्शिद भाई मुझे यह तक कह दिया गया था, प्लीज ऑफिशियली किक हिम आउट बिफोर ही डज समथिंग बैड टू एंड डिकोडेड, और आप लोगों के खिलाफ कर ले। इस सबसे पहले ओए, जो डिसीजन मेक किया था वो हम बता नहीं सकते पब्लिकली। उसामा भाई याद है जो याद लास्ट है ना आपको? याद है। हमने, मैं अब नहीं बोल सकता शाह जी, आपके लिए कितना डर हमने डिसीजन लिया था ना, अपनी जात मार के जुलाई के एंड पे, जब वेकेशन पे जाने से एक हफ्ता पहले, जब आप चले गए थे, हमने एक डिसीजन लिया था आपके लिए। मैं से सारे निकल गए थे, मैं और आप ही थे सीकर उसामा भाई। भाई आपको हिंट दे रहा हूं कसम से, जिस मोहसिन ने ये बातें बताई थी, मैं उस मोहसिन को साइड करने पे तैयार हो गया था कि नहीं, मैं अपने भाई को सामने रखूंगा, करूंगा एक दफा सामने। I know that. I was there the whole time. So शाह जी, बड़ा जिगरा किया था उस दिन हमने आपके लिए। हाँ, लेकिन काज़मी, क्या है काज़मी, और तूने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं इस बारे में, पता ही नहीं है, क्योंकि आपने तूने भाई खोए, जा काज़मी। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने कहा आप पेशेंट को मैंने एक और करनी है, 2 पेशेंट को मेरी पड़ी हुई है। फजल अहमद भाई, आपके बारे में इसलिए नहीं कह सकता जब तक मैं आपकी आवाज ना सुनूं। उसामा भाई आपको थोड़ा जान ना दो। एक पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिनकी फोटो काज़मी ने आगे लगाई हुई थी फ्रंट के ऊपर, और वो इशारा कर रहे थे पीछे को, समझ आ गई? हाँ समझ गए ना? अच्छा, उसामा भाई उनसे ना मेरा फटा था, और उनके पहले दिन से उनका मेरा फटा हो गया, बिकॉज ही फेल्ट कि मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूं। मैंने तो कभी जिंदगी में इंजीनियर का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन इनकी वजह से मैं बदनाम हो गया। उसने कहा ये इंजीनियर का स्टूडेंट है, लो जी फटा चल गया, बड़ा डाटा किस्म का। वो मेरा ताकुब हो रहा है और फला हो रहा है, पीछे पीछे आगे पीछे। मैंने भी खैर कोई इतनी मतलब वो नहीं, कोई सख्त जुबान मैंने भी थोड़ी बहुत इस्तेमाल की। लेकिन उसामा भाई एक दफा ना मैं उठा, मैंने ना काज़मी को उसके ऊपर बैठे देखा। मैं वो बात मैंने क्या की थी, मतलब वो है तो थोड़ी सी अजीब सी बात, कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा
मतलब कोई ऐसा रिश्ता किसी के साथ, पराये के साथ बैठा हो, मुझे ऐसे फील हुआ कि तू मेरा इस तरह भाई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, काम ही ऐसे। कोई मैं बात ये कहूंगा, हम लोग जो है ना, मैं कहूंगा ये कहूंगा, ये बहुत ही, क्या कहूंगा, एक अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत आदमी। मैं इतना- काजमी साहब और सीकर अहमदियों के भाई आके यकीन माने, ये जब ब्रॉड के ऊपर आते थे हम लोग अपने आप को पीछे कर देते था। मैं कहता था यार चलाओ जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो। उसामा भाई मना किया करते थे, कहते थे कि यहाँ पे ये उस तरीके से हम लोग ब्रॉड नहीं चलाते हैं जिस तरीके से आप लेके। मैंने बोला उसामा भाई करने दे, आप इन्हें जो ये कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, करने दें, ठीक है। इन्हें ब्रॉड के ऊपर ये इसी वजह से फजर के वक्त आते थे कि भाई वहां पे जब जाऊंगा तो यकीन माने सबसे ऊपर की सीट के ऊपर होते थे। मुर्शिद भाई, मोस्टली लोगों को तो नहीं पता टिकटॉक के ऊपर, काजमी को पता है मैं क्या क्या सेक्रीफाइस करता था। सिर्फ इस टाइम रॉड लगाता था जिस टाइम काजमी आता था। बिल्कुल, हमने अहमद की ब्रॉड पूरी शिफ्ट कर दी थी, याद है? वो बड़ा कुछ किया हुआ है काजमी को तो कुछ काजमी नहीं साहब, आपको पता, पीछे इसको सब पता है। ये तो सिर्फ इतना ही कहता था, इसको सीकर ब्रॉड लगाओ, सीकर इसको वो कुछ नहीं पता जो, इसको ऐसा बहुत कुछ नहीं पता जो किया हुआ है इसके लिए। ऐसा भी बहुत कुछ है, आपने कभी बताया नहीं इसे, और ये बात हकीकत है, बड़ा कुछ किया हुआ है इसके लिए। ये मेरा ख्याल कहता है कि जब लास्ट टाइम हैपन हुआ था इनके साथ, ये मेरे ख्याल में इसी चीज के लिए आए थे कि अगर यहाँ पे काम चल जाता है तो फिर तो ये मुझे ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है समझो कि मेरा कंडा है ना कट सड़े। Yes, yes, है yes. ना? I know what you're talking about. Yeah. हम्म। Reaction is an act. All you have to give an action, so there can be a reaction. और दूसरी पता ही बात नहीं यह है है उसामा शाजी, भाई, हम चलते ही असूल पे हैं, सीखा ये है। सीकर भाई कहते हैं कि और असूल नहीं है जिंदगी में तो फारग हो आप लोग। और वैसे भी शाजी आप बेवकूफ बन गए हम जो क्या था, आपको भी पता नहीं है। अभी रुक जाए आप, मैं आपके बारे में ना एक बात करूंगा तो मुंह से सुनिएगा, और मैं साफ दिली से बोल रहा हूँ, आप बनते तेज है, समझदार है, लेकिन ना आप बेवकूफी कर बैठते हैं जल्दबाजी में, आपको आइडिया नहीं है इन चीजों का। सब्र रखे, तहम्मुल रखे, ठीक है आपको चेस खेलने आती है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। काजमी साहब ने ना अगले दिन, याद होगा आपको, बाबर के साथ बैठकर एक डायलॉग मारा था, क्या? तुम्हें तो नैरेटिव का अभी पहली क्लास हमने सिखाई थी, नैरेटिव बिल्डिंग की, तुम बनाओगे नैरेटिव। ये बाबर और काजमी ने कहा है? काजमी साहब कह रहे थे बाबर साहब, मेरे ना यकीन कर चेहरे पे ना हल्की सी स्माइल थी, मैं कहा नाल नाल जरा तेरे बैठे होते को पहुंचला। नहीं, नैरेटिव तो मिलके बनाया था, हमेशा हमेशा मिलके बनाया था, बड़े कमाल का बनाते थे बस क्या कहें यार, नैरेटिव बनाना, मैं क्या बताऊं। वैसे सीकर भाई अच्छा ही हो गया, बड़े नुकसान से कुछ छोटा नुकसान हो जाए वो मैं तो मुर्शिद भाई यकीन मानो, अल्लाह के ऊपर देखे, अल्लाह की जात का बड़ा ही फजल है। हम बड़े नुकसान, बड़े मुर्शिद भाई जुलाई में, सिकर भाई जुलाई के एंड पे हम बड़े नुकसान के सारे रूट्स निकाल रहे थे बैठ के। हाँ? कौन कौन सी मैचेस हमारे पास पड़ी हुई है, कौन कौन से रास्ते पड़े हुए हैं, किस रास्ते से हमने बड़े नुकसान को ना बचना है, यकीन माने। हाँ। और हमने बड़े हार्ड डिसीजन लिए थे सिर्फ साजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, बट How dare you? हाउ डे अल्लाह की राइज। जात बड़ी गफूर रहीम है उसामा भाई, बड़ी गफूर रहीम। सही भाई, हाउ डेयर यू, क्या आप कम बैक कर गए विदाउट एनीथिंग, विदाउट स्पाइसीनेस एंड ड्रामा एंड गॉसिप, हाँ, without going below belt. How dare you, Seeker bhai? How dare you? तो फिर कसम से एक मैं लगा दूं ना लैपटॉप के साथ एक ब्रॉड, ठीक है, ओए 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 ओए, और मैं उसका नाम रख दूं ब्लैक मोल, अगले ना तकरीबन मैं कहता हूं 4 महीने तक ना कुछ और लोगों को चाहिए नहीं।
हाँ हाँ वही प्ले कर कर लोग जो है ना वो हंसते रह गए कि ये यार। मुर्शिद भाई वो आपने अक्सर देखा होगा, वो एक फिल्मों में भी सीन आता होता है इस तरह का कि जब कोई शख्स धोखा दे जाता है तो वो एकदम फ्लैशबैक में पुरानी अच्छी बातें याद आती हैं। और ये तो इस तरह होता था। तो बिल्कुल। लोगों ने भी ना काजिमी की शक्ल अपने जेहन में लानी, ओए ये तो कुरान हदीस की दलीलें देता था। तो निकलेगा कि या वैसे इंतहा की मुनाफिकत है सीकर भाई, इंतहा की है कि आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो। और देखें मुंह के ऊपर किस कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस चेक करें आप। फ्लैक्स है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे डड्डा पीर साहब कहे कि अच्छा स्टिकर कैसे भेजना होता है, उस पर लेक्चर दे रहे हो। एक महजब स्टिकर के बनाना कैसा होता है, डड्डा पीर साहब इस पर लेक्चर दे तो हंसेंगे ना आप दिल के अंदर। जारी बात। शुक्र करो डड्डा पीर की चैट नहीं काज़मी लीक कर दी, खाली स्टिकर्स दिखाने थे, लोगों ने कहता ओए ओए ओए। वो बाद में सोचा होगा उसने बोला होगा हो, उसके ज़हन में नहीं रहे होंगे। उसने सोचा होगा कि यार ये बंदा मॉडरेशन करता है बस। बैका बेचारा अब जारी बात है एपिसोड्स बना रहा है, ब्लैक स्वान और वो बैक पाइपर, ठीक है, वो सारा ना तो बेचारा लगा हुआ है कहीं ना कहीं से घूम फिर के इधर उधर इधर इधर। पहले डर गया था जरा थोड़ा सा ना, फिर इसको लगा कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो आला ज़र्फ का आदमी है। उन्होंने कहा चलो फिर अच्छा मौका है और कर लेते हैं, ठीक है। इसने ना पूरी ढूंढता होगा बैठ के, चैट्स ढूंढता होगा, चीजें निकालता होगा, A to Z देखता होगा, अब क्या क्या मुझे मिल सकता है, क्या क्या मुझे मिल सकता है। जा स्पीकर भाई कहते हैं ना कि जब चोर जो है ना वो घर के अंदर दाखिल होता है ना तो सबसे बुज़दिल इंसान वो होता है उस वक्त। ऐसे ही अक्सर होता आप देखो कि जैसे ही कोई थोड़ी सी आवाज भी आती है ना, यकीन माने वहीं पे यहाँ तो साइड पे हो जाएगा या वहां से भागने की करेगा। इन लोगों ने जो अपने इर्द गिर्द गिलाफ बनाया है, इतना कमजोर बनाया ना कि वो मकड़े के जाले की तरह अपने इर्द गिर्द वो के बना के ना, तो ये सोच रहे थे कि भाई ये इतना मजबूत, इन आखे पता नहीं स्पाइडरमैन द ओरिजिनल जाला आ गया। अच्छा मुर्शिद भाई, इन्होंने दोनों ने जब मिले हैं ना, इनको लिटरली अगर मुझसे पूछ लेते ना स्ट्रेटजी, मैं इसको दे देता। वाकई मैं इसको अच्छे एक फेयरवेल के तौर पे ना स्ट्रेटजी बना के दे देता कि चल यार पहले भी तो बनाई है ना, ये ले फेयरवेल अच्छे तरीके से, मुझे ठोकना है, ले मैं तुझे अच्छी स्ट्रेटजी बना देता हूं। हाँ ये जरूर मैं शायद कहता कि यार ये जातियात वाला काम छोड़, अच्छा तूने हीरो बन के निकल रहा है ना। आपको पता ना शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी तो वो भी असली मौके पर निकला था कि मैं रेमंड डेविस के खिलाफ खड़ा हो गया था। इसी तरह भुट्टो ने छोड़ी थी। ये एक नेचुरल चीज है, जब भी कोई इस तरह छोड़ता है ना तो वो चाहता है कि मैं एक हीरो बन के निकलूं, बिल्कुल कि मैं जी हीरो था वहां पर, मैं असूल के ऊपर छोड़ के आया। इस बेचारे ने भी यही सोचा था, तो देखो क्या हाल हुआ, क्या होगा, चोली ड्राइवर बन के बैठा हुआ। तेरी अपनी लाइफ थी, तू अपने बैठा था, इज्जत से तू बैठता, चोली ड्राइवर बन के बैठा। सीकर भाई मैं कल्ला ही काफी हूं, मनु किसे दी तो उसके साथ तो खैर बहुत ही मजे का हुआ है। ब्रॉड चली नहीं ना मुर्शिद भाई, देखे मैं बताऊं, बाबर ब्रॉड लगाता था, सारे मुसलमान जाते थे यार, बिल्कुल ओए हम होते थे यार, सब मुसलमान बैठ, तूने हर मुसलमान को तो गाली निकाली है, तूने छोड़ा कौन है पीछे, हर मुसलमान को तूने गाली निकाली है, हर मुसलमान को मुशरिक, चोली ड्राइवर, सहूलतकार तूने कह दिया। लोगों ने क्या थूकना तुम्हारे मुंह पे जाके। सीकर भाई उस वक्त भी तो ये अकेला था क्या वहां पे? नहीं, क्या कह रहे दोस्त से बाप उस वक्त भी अकेला तो नहीं था ना मुर्शिद भाई, ये तो बातें है ना,
सीकर भाई आप मुझे बताएं ना कि भाई तू मुंह से हवाला निकाल रहा है, तेरे को पीछे भाई हवाला दे रहा है कि भाई ये हवाला वहां पे लगा दे, तू वहां पे बैठ के कौन से हवाले लगा रहा था? वाह, वो अगर तेरे पास हवाले नहीं पहुंचते, तू बता तूने वहां पे क्या करना था? लोग कहना ठीक है यार, अज भी अगे भी सर्कस वेखने, चलो फिर भी मेला तो सर्कस वे ही आई है, पहचान है मेले दी कि भाई सर्कस वे ही आई है। वो भी यही आते होंगे, चल यार इदी भी सर्कस वे ही आई है। वो जिस अब तो बंदे अस्सलामुअलैकुम को वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीकर भाई, मैंने जितना भी सुना है आपको और उनको, मुझे क्यों नजर आता है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों से। नहीं यार, भट्ट साहब मोहब्बत तो है ना यार, देखो मोहब्बत कीती है वक्त बिल्कुल। गुजरा यानी कि ਉਹ है, ਨਫ਼ਰਤ वक्त ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਕਾਰੀਗਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? भट्ट साहब इसको इसी तरीके से ले ले, शायद मैं एक्सप्लेन कर सकूं सीकर भाई को कि मैं अक्सर कहता हूं कि जो शीशा होता है ना, वो जब टूटता है ना तो उसके रहता शीशा ही है, लेकिन उसके दरमियान में दरार आ जाती है, वो नहीं फिलअप होती है। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ खत्म। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ लेकिन जब किसी को पैगाम देंगे ना तो वो आपको यही बोलेंगे ਫਿਰ कि ਉਸ ਦੇ हाँ ही ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਤਹਰੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਕਿ ਲਾਈਫਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਆਦਤਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਾਂ।